Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. We praise your holy name, Lord. Hallelujah. 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 We bless your holy name, King of glory. We bless your holy name. We bless your holy name. Hallelujah. We bless your holy name. We bless your holy name, Lord. Bless your holy name, Lord. We bless your holy name. Hallelujah. आइए सब मिलके प्रार्थना करें भाई ललित मेहरा के लिए। भाई ललित मेहरा को फीवर नहीं उतर रहा है, दिल्ली में है। आइए उनके लिए मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब प्लीज़ भाई ललित मेहरा को अपनी प्रार्थनाओं में उठाइए प्रभु के आगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हो। धन्यवाद 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 हो। Jesus of Nazareth, thank you. 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 Jesus of Nazareth। सब प्रार्थना करें ललित भाई के लिए। आप सभी लोग जितने ऑनलाइन हैं, ललित मेहरा हमारे भाई हैं, विश्वासी भाई दिल्ली से, उनको फीवर नहीं उतर रहा है। लेट्स प्रे दैट दिस वायरस विल नॉट टच हिम। लेट्स प्रे दैट द लॉर्ड विल प्रोटेक्ट हिम। Father, we commit Brother Lalit Mehra into your hands, Lord. Lord, we pray that you will heal him. Lord, that you will deliver him from this scourge of the enemy. Father, from this scourge that is falling upon many people. Lord, there's this vicious evil, Lord, that is stalking around the world. खुदावंद अपना हाथ बढ़ा के ललित भाई को छू। मैं तेरा खून ललित भाई पे छिड़कता हूँ प्रभु। हम मिलके तेरा लहू ललित भाई के ऊपर छिड़कते हैं, तेरे खून में से छिपाते हैं। उसकी बीवी को, बच्चों को, घराने को तेरे खून में छिपाते हैं प्रभु। ये विशेष फीवर यीशु मसीह के नाम में चला जाए। तेरे खून की कुदरत काम करे यीशु मसीह। दया कीजिए ललित पे, दया कीजिए प्रभु। वो आपका जन है प्रभु यीशु मसीह, उसके जीवन पे दया कीजिए। सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो ललित भाई के जीवन में। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम सभी प्रार्थना विनतियों को जो लोगों ने भेजी खुदावन, सबको आपके हजूर में उठाते हैं। अपनी कृपा के हाथ को बढ़ाएं यीशु मसीह, अपने अनुग्रह रूपी हाथ को बढ़ाएं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Lord, I pray for this dear brother Praja Shakta Rana who joined us today. Bless him, Lord. Bless Devinder Kular and her husband in Britain. Lord, may your hand be upon this family. Lord, bless Vinod Christian from Canada. Bless him and his household. Lord, bless brother Amit Sam from Delhi. Bless brother Bobby Art and his brother Charanjeet and his wife, Lord. I bless them in Jesus' name. Brother Malkiyat Gill and his family. Akansha Kumari, a daughter from Britain, I cover them under the blood of the Lamb, Father. सतपाल पास्टर जी को तेरे लहू में छिपाता हूँ। साबी सुरजीत, उसके घराने को तेरे लहू में लेकर छिपाता हूँ खुदावन। प्रभु मैं प्रभदीप को, उसके पूरे घराने को तेरे खून में छिपाता हूँ। ब्लेस ब्रदर विनोद लाल, bless his wife Agnes Lal, their daughter and their son, Father. Cover them in the blood of the Lamb. Bless Gurdeep Singh, his brother Sandeep Singh, his father, mother, his sisters and their respective families, Lord God. Hallelujah. We bless you, Jesus. साहिल भाई को जो पाकिस्तान में बरकत दें। ब्लेस रिचा मसीह को बरकत दें खुदावंद, अपने खून में छिपाइए। भाई रमन खान को, उनके घराने को आपके लहू में हम छिपाते हैं खुदावंद। आपका नाम ऊंचा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद। लॉर्ड, आई pray for Godala Daniel who is watching us. May your blessing be upon this dear brother and his household. Durgesh Kumar, Lord, I cover him under your blood. I speak your blessing. I bless Emmanuel Sahota and I speak your covenanted blessing over him and his household. I bless Cherry Sidhu from Ludhiana. Bless our Father.
Cover her and her family under your blood. Amrish Kumar, bless him, his ministry, Lord. Father, I pray for Sunita Kaur and her family in Britain. Bless them, Father, her whole household. May they come to, may they come under the covering of the, particularly Raj, Father. I draw her to the fountain of the blood of Emmanuel, Lord Jesus. Hallelujah. Bless Tanuja Seth. May your hand be upon Tanuja Seth, Lord. I bless Manisha Singhi. Bless her household, Lord Jesus of Nazareth. Cover her under the blood, Lord. I pray for Suresh Kumar, for your blessing, Lord. Bless him. Hallelujah. Parminder Singh, Lord, I bless him. Hallelujah. Lord Jesus, move in his life. Lord, change his heart, change his life. Karamjit Kaur, Lord, bless her. Karamjit Kaur को आपके खून में मैं छिपाता हूँ. हालेलुया. दविंदर सिंह को प्रभु जो JNK में आपके लहू में छिपाता हूँ खुदावन. दविंदर सिंह के घराने को, Lord, I bless Sajan Hans. May your hand be upon him. Jasveer Singh Surinder, Lord, bless him. I pray for Pam Harnath. Lord, they are from the Caribbean island. Bless them, Father. Bless the work that they do for your kingdom. Bless their precious household, Lord. Lord, I pray that you will protect them under the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Lord, you will be around about them like wall of fire as you promised in book of Zechariah, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Lord. I bless Gopi Chida. May your hand be upon Gopi Chida. Lord, bless Brother Harpal Bajwa from Batala. May your hand be upon them in Jesus' name. Lord, open a miraculous door for this man to go to Italy, Father, as he is pleading before you. Bless Salim Gabriel, Lord, from Pakistan, who lives in Canada, Father. Bless his household, bless his family. Bless Brother Darshan Singh from Jalandhar. Bless his children and his wife, Father. Hallelujah. Lord, I bless Brother Robbie John from Firozpur. Lord, bless Robbie and his father, mother, whole family and his brother who is in Italy, Father. I speak your blessing. Hallelujah. Tere lahu ki jai ho. Lord, I bless you. I bless you, Lord. Hallelujah. Lord, I bless Avatar Burjman from Chandigarh. Lord Jesus, stretch forth your hand upon this brother and his mother and his sisters and their respective families, Lord. Lord, I bless Ashish Nasrani. Lord Jesus, may your hand be upon this child of yours. Thank you, Father. I bless Sunita Lawrence from Delhi. I pray for her son, Lord, the petition that she has put before you for the recovery and total wellness, health, healing, Lord, and divine miracle to birth in his body in the mighty name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. खुदावंद मैं एक एक जन को तेरे खून में छिपाता हूँ. प्रभु तेरा धन्यवाद. हालेलुया. तेरा धन्यवाद प्रभु. इन अंत के दिनों में हमें सजग करें, हमारी आंखें खोलें प्रभु. तेरे लोगों को तेरे लिए जीना सिखाएं खुदावंद. हालेलुया. धन्यवाद हो प्रभु जी. मैं करण जीत के लिए भी प्रार्थना करता हूँ. करण जीत को तेरे लहू में छिपा देता हूँ खुदावंद. भाई दविंदर सिंह के ब्रदर इन लॉ को, हालेलुया, तेरा लहू छिड़कता हूँ प्रभु एक एक जन के ऊपर. लॉर्ड, आई प्लीड योर ब्लड. Lord Jesus, I plead your blood. Lord Jesus, I plead your blood. Lord Jesus, I plead your blood. तेरा खून छिड़कता हूँ खुदावंद. अपने वचन से हमसे बोलना और बातें करना खुदावंद. हालेलुया. आपका नाम ऊंचा हो प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. जगीर मसीह जी फ्रॉम हिमाचल, द लॉर्ड ब्लेस यू. प्रभु आप सबको आशीष दे. हालेलुया. मैं हिंदी की बाइबल जरा ग्रैब करूँ. हालेलुया. आज बहुत ही अजीब वेदर है. इट्स रेनिंग लाइक डॉग्स एंड कैट्स आउटसाइड. हालेलुया. इट्स रियली नास्टी वेदर. नॉट नास्टी बट दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड. बहुत बारिश पड़ रही है. मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. आप में से जो लोग ब्रिटेन में हैं शायद आपने सुना होगा. चार्ल्स हॉडर स्पर्जन एक बहुत अजीम खुदा के दास थे. चार्ल्स स्पर्जन, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वंडरफुल खुदा के सर्वेंट थे. तो आज से 150 साल पहले ब्रिटेन में रहते थे. तो बारिश बहुत पड़ रही थी और स्पर्जन साहब अपना छाता लेके, मड्डी रोड थे, कीचड़ भरे रोड थे 150-200 साल पहले इंग्लैंड में, उस पर चले आ रहे थे. बहुत बारिश पड़ रही थी. एक जवान उनकी कलीसिया का सामने से आ रहा था और जवान आके
परमेश्वर के दास को, चार्ल्स स्पर्जन को बोलता है, रेवरेंड, व्हाट अ नास्टी डे इट इज़ टुडे। स्पर्जन साहब ने उस जवान की ओर देखा, अपना छाता अपने हाथ में पकड़ा, कीचड़ था सड़क पे, छाते को यूँ गोल गोल घुमाया और डांस करने लगे और कहने लगे, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। उन्होंने बोला, यंग मैन, दिस इज़ नॉट अ नास्टी डे, बट दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड। ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। मैं जो कल आपको वचन बताया, जो आज सुबह बहुत इंटरप्शन हुआ उसके अंदर, कुछ हिस्सा उसका आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन कुछ थॉट्स मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। आमोस नबी की किताब निकाल लीजिए, आमोस नबी की किताब। हालेलुया, हालेलुया। आमोस नबी की किताब, उसके अंदर से कुछ वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आमोस नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन सुनिए। मैं कुछ वचन बीच में से पढ़ता जाऊँगा। आमोस नबी की पुस्तक पहले अध्याय का पहले वचन में लिखा, तको आवासी आमोस जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, ये उसके वचन हैं जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और योआश के पुत्र इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इज़राइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। ये व्यक्ति का नाम है आमोस, और ये साधारण व्यक्ति है, भेड़ों बकरियों को चराने वाला गडरिया है। हालेलुया। और ये व्यक्ति उत्तरी इस्राएल में, जिसे हम इस्राएल बोलते हैं, और दक्षिणी इज़राइल को हम यहूदा कहते हैं, उत्तरी इस्राएल जो था उसके ऊपर शासन करने लगा यरोबोआम, जो कि सुलेमान का नौकर था। और जो उत्तरी इस्राएल था वो शुरू से ही यहोवा परमेश्वर से बहुत दूर चला गया, क्योंकि उत्तरी इस्राएल का जो पहला राजा था वो बड़ा दुष्ट था। उसने दान में और बैतल में 2 बछड़े बनवा के लगवाए, और इस्राएली प्रजा के अंदर उसने ढिंडोरा पिटवाया कि पूरी जो इस्राएली प्रजा है, नॉर्दर्न किंगडम है, उत्तरी इज़राइल है, 10 गोत्र वहाँ पे रहते थे, पूरे का पूरा उत्तरी इज़राइल इन बछड़ों की पूजा करेगा, क्योंकि ये हमारे वो परमेश्वर हैं जो हमें मिस्र में से छुड़ा कर लाए हैं। उसने पूरे नॉर्दर्न किंगडम में 10 गोत्रों के बीच में इस तरह का सिस्टम बना दिया। उसने धर्म को पॉलिटिसाइज किया। बाइबल तो धर्म नहीं है, लेकिन उसने यहोवा को धर्म बना दिया और उसको पॉलिटिसाइज कर दिया। राजा ने सारी आध्यात्मिक बातों को अपने हाथ में ले लिया। परमेश्वर राजाओं को आत्मिक चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेने देता था। परमेश्वर राजाओं को अलग रखता था, याजकों को अलग रखता था, और नबियों को अलग रखता था। परमेश्वर तीनों को अभिषेक देता था, नबी को अभिषेक देता था, राजा को अभिषेक देता था, और याजक को अभिषेक देता था। तीनों का अलग अलग काम होता था। जब कोई राजा परमेश्वर के आत्मिक कामों में अपना हाथ डालने की कोशिश करता था, उज्जिया नाम के राजा की बात यहाँ पे की जा रही है। यहूदा का राजा उज्जिया है, और योआश का पुत्र यरोबोआम। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि यहोशाफाट एक बहुत अच्छा राजा था। यहोशाफाट राजा की दोस्ती किसके साथ थी? अहाब जैसे दुष्ट राजा के साथ। दुष्ट राजा अहाब की पत्नी महादुष्ट थी इज़बेल। और फिर मैंने आपको बताया कि अथलाया उनकी जो बेटी थी, उसने यहाँ पे जिस राजा का नाम लिखा है यहोराम, उसके साथ शादी की, और उसकी शादी यहाँ होने से क्या हुआ, जो दक्षिणी इज़राइल था उसका भी पतन होना शुरू हो गया। उत्तरी इज़राइल का पतन तब हुआ, इज़बेल और अहाब ने जो बालों की, अश्तोरेत की जो ऊंची जगह बनाए, ग्रोव्स बनाए,
वृक्षों के नीचे उपासना कराई, और उन्होंने जो तारागणों की पूजा की, उन्होंने जो अन्य जाति के देवी देवताओं के लिए ऊंचे भवन और गढ़ बनाए, उनको माथा टेका, और उन्होंने उनको जानवरों की बलियां दी और जानवरों का रक्त पिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उत्तरी इजराइल पे, नॉर्दर्न किंगडम पे श्राप आया। वही पाप ट्रांसमिट कर दिया शैतान ने यहोशापात की गलत दोस्ती के कारण, और दक्षिणी इजराइल भी पलूट हो गया, करप्ट हो गया, और परमेश्वर का क्रोध दक्षिणी इजराइल पे भी भड़क उठा। तो ये जो नबी है ये रहने वाला है दक्षिणी इजराइल का, तको आवासी आमोस, जो भेड़ों बकरी को चराने वालों में से था। ये उसके वचन है। उसने जो यहूदा के राजा के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से दो पहले इजराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। क्या वचन है? यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा, तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी, करमल की चोटी झुलस जाएगी। इसके मुंह से जो पहला शब्द निकला बहुत ही खतरनाक था कि यहोवा का दंड, यहोवा का क्रोध भड़कने वाला है, यहोवा की जलजलाहट इजराइल के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, सियोन पर्वत के ऊपर गिरने वाली है। और ये जो परमेश्वर का भक्त है, सच्चा नबी है, आप आइए इसके 7 अध्याय में, 7 अध्याय में आइए। मैं इसका आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ इसी आमोस की पुस्तक के 7 अध्याय में। परमेश्वर यहोवा ने मुझे ये दिखाया, और मैं क्या देखता हूँ कि उस दिन उससे पिछली घास के उगने के आरंभ में टिड्डियाँ उत्पन्न की। अभी आप देख रहे हैं ना टिड्डियों की बवा जारी है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम ट्रिबुलेशन में चले गए हैं। भाई और बहनों, अभी ट्रिबुलेशन शुरू नहीं हुआ। ये टिड्डियों की जो बवा है वो टिड्डियों की बवा नहीं है जो प्रकाशित वाक्य में है। बहुत सारे, किसी ने मुझे मैसेज भेजा है कि वो टिड्डियाँ आ गईं जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे भाई और बहनों, वो प्रकाशित वाक्य में जो टिड्डियाँ आती हैं, 3.5 साल का शैतान का राज का पहला दौर पूरा हो जाता है। उसके बाद एक नीचे अबूसोस है, एबिस है, एक बॉटमलेस पिट है नीचे, एक ऐसा नीचे नेगेटिव डिमेंशन है पृथ्वी के नीचे जिसकी बॉटम नहीं है। उसके अंदर अबदोन को घेरा गया है, अपोलियोन जिसका नाम है, एक फरिश्ते को, बहुत भयंकर एक शैतानी दूत है जिसको चेन बांध के उस पिट के अंदर गिराया गया है। जब से प्रभु ने उसे उस खड्डे के अंदर, वो ऐसा खड्डा है, एक नेगेटिव डिमेंशन है, उसमें गिरा है वो। जब प्रभु ने गिरा है तब से अभी तक गिरी जा रहा है, वो बॉटम को टच नहीं किया है। उसके अंदर ये जो टिड्डियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी टिड्डियां हैं, भयंकर टिड्डियां हैं। ये लोगों को काटती हैं। जब काटती हैं तो लोग मौत मांगते हैं, उन्हें मौत नहीं मिलती। ये ह्यूज जायंट टिड्डियां हैं भाई और बहनों। ये वो टिड्डियां नहीं है जो कई प्रचारक डाल रहे हैं कि आ गई वो टिड्डियां। अभी तो ट्रेलर चल रहा है। हालेलुया। अभी ना तो मोहरें खुली हैं, अभी तो जच्चा की पीड़ाएं शुरू होनी है। जच्चा की पीड़ा से पहले जो स्त्री को कॉन्ट्रैक्शन होती है, अभी ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई है। वो खुलेगा उसका बॉटमलेस पिट का। आपको मैंने बताया था वैज्ञानिकों की एक शाखा है जिसे सर्न बोलते हैं, CERN, वो जिनेवा में है। वो वैज्ञानिक लोग इस बॉटमलेस पिट को खोलना चाहते हैं। ये दुनिया जो प्रभु ने बनाई है, इसकी कई डिमेंशंस हैं। हम 3 डिमेंशनल दुनिया में जी रहे हैं, इसकी अलग अलग डिमेंशंस हैं, अलग अलग मल्टी डिमेंशनल दुनिया है। ये जो बाइबल है ये टाइम और स्पेस से परे से आई है, इसलिए लोगों को ये समझ नहीं आती। कार्नल जो मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य जो पाप में जीवन गुजार रहा है, उसको ये समझ नहीं आती बाइबल। क्यों? क्योंकि ये टाइम और स्पेस से परे से आई है। इसके अंदर एक डिवाइन इंटीग्रेटेड मैसेज है जो बीच में से बाहर निकल आता है जब पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। तो ये मल्टी डिमेंशनल दुनिया है, वो इसकी डिमेंशंस को ब्रेक करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और आपको मालूम, उनका सर्न ने जिनेवा में जो वैज्ञानिकों की एजेंसी है, उनका मैस्कॉट क्या है? बहुत बड़ा एक बाहर तांबे की मूर्ति है, उसके अंदर नटराज नाच रहा है, जो कि शंकर का एक, जिसे अवतार बोलते हैं। और वो लोग बिलीव करते हैं कि उसको बॉटमलेस पिट में से निकालना है।
हालेलुया। जब वो निकलेंगी टिड्डियाँ तो आलम बहुत खतरनाक होगा। अभी ये वो टिड्डियाँ नहीं हैं। वचन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। हालेलुया। तो ये भी टिड्डियाँ हैं। और क्या लिखा है, वो घास खा चुकी। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रहेगा, कितना निर्बल है। विषय में यहोवा पछताया और उसने कहा अब ऐसी बात ना होगी। फिर आग आई। फिर 7 वचन में आइए इसके। उसने मुझे ये भी दिखाया, मैंने देखा कि प्रभु साहुल लगा के बनाई हुई दीवार पर खड़ा है, उसके हाथ में साहुल है। अभी प्रभु खुद साहुल लगा रहा है। साहुल क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे दीवार बनाते हैं ना मिस्त्री लोग, तो एक बॉल सी होती है पीतल की, उसको यूँ नीचे गिराते हैं। प्लम्ब लाइन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्लम्ब लाइन। वो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बताती है कि दीवार ऐसे 90 डिग्री के कोण में है या नहीं है। प्रभु साहुल लगा रहा है। हालेलुया। आमोस तुझे क्या दिख पड़ता है? मैंने कहा एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। प्रभु ऐसे आपको साहुल लगा के सीधा कर रहा है। ये जो समय है कोरोना वायरस, ये लोगों को सीधे होने का टाइम दिया प्रभु ने। सीधे हो जाओ, सीधे मार्ग पे चलो, पश्चाताप करके मेरे हुक्मों को, मेरी विधियों को, मेरी व्यवस्था को, मेरी चितौनियों को अपने दिल में रखो। पवित्रताई, धार्मिकता, खराई के मार्ग पे चलो। मेरे वचन स्वरूप अपना जीवन बनाओ। और जो बनावटी जीवन जीते हो ना, वो छोड़ दो। और जो परफॉर्मेंस करते हो स्टेजों के ऊपर, वो भी छोड़ दो। नेक और सच्चा जीवन जियो प्रभु के लिए। वचन को तोड़ना, मरोड़ना, वचन को डाइल्यूट करना, लोगों को ठगना, परमेश्वर के कलाम को बेचना बंद कर दो। ये पैगाम दे रहा है यहोवा परमेश्वर। प्रभु कहता, मैं साहुल लगाऊंगा, मैं अब उनको ना छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे। मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। यरोबाम नॉर्दर्न किंगडम के राजे के ऊपर, उसके घराने पे तलवार लेके आ रहा हूं, यहोवा कहता है। अब देखिए, ये वचन बोल रहा है ये नबी। पहला ही वचन बोल रहा, तबाही आ रही, बर्बादी आ रही है। तो लोग कहते हैं ग्लूम एंड डूम के प्रॉफिट हैं, ये जजमेंट वाले प्रॉफिट हैं। बढ़िया बातें, मोटिवेशनल प्रीचिंग होनी चाहिए, आशा का पैगाम देना चाहिए। गुड न्यूज़ दो भाई, ये तो बैड न्यूज़ है। ऐसा कहते हैं लोग। तो देखिए, अब 10 वचन पढ़िए। तब बैतल के याजक अमस्या ने, अब जब ये नबूवतें कर रहा है प्रभु का बंदा, इसकी नबूवतें राजा के महल तक पहुंच रही हैं। इसकी नबूवतें इजरायली प्रजा सुन रही है। इजरायली प्रजा देख रही है कि जो झूठे नबी हैं वो तो बहुत बढ़िया पैगाम दे रहे हैं। गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज़ गोइंग टू अनॉइंट यू, गॉड इज़ गोइंग टू गिव यू विक्ट्री, गॉड इज़ गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, गॉड इज़ ब्रिंगिंग योर बेस्ट इज़ येट टू कम। वो तो ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं, और ये नबी कैसे कलाम दे रहे हैं। तो राजा के तक भी बातें पहुंची। तो देखें, तब बैतल के याजक, कहाँ के याजक? बैतल के, क्योंकि बैतल में और दान में बछड़े की पूजा हो रही है। मूर्तियों की पूजा इस्राएल कर रहा है और यहोवा को त्याग दिया। और ये भ्रष्ट याजक है, दुष्ट याजक है। ये यहोवा का याजक नहीं है, शैतान का याजक है। ये बालीमों की पूजा करते हैं, अशेरा की पूजा करते हैं, ऊंचे स्थानों पे पूजते हैं, वृक्षों के ऊपर जाके उपासनाएं करते हैं, शैतानों के लिए जगवेदियां बना के उनको कुर्बानियां चढ़ाने वाले झूठे याजक हैं। अमस्या ने इजराइल के राजा यरोबोआम के पास कहला भेजा, आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। ये राजा के पैसा खाने वाले याजक हैं जो मंत्रियों के पीछे भागते हैं। पंजाब में भी बहुत हैं ऐसे, मंत्रियों के पीछे पैसा लेते हैं जब इलेक्शन आते हैं उनसे। यहोवा के खादिम नहीं है ये शैतानी पूजा, शैतानी उपासना करते हैं। राजा आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, क्योंकि यहोवा का नबी सच्चा कलाम बोल रहा है। इसलिए ये बैतल का याजक राजा को बोल रहा है कि ये नबी तेरे राजघराने के विरुद्ध में षड्यंत्र कर रहा, राजद्रोह अर्थात तेरे राज को, तेरा तख्ता पलटना चाहता है। देखिए कितना झूठा आरोप लगाया प्रभु के बंदे पे।
उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। जो कलाम वो देता है देश सह नहीं सकता। भाई ये कलाम आमोस नहीं दे रहा, ये कलाम यहोवा दे रहा है, जिसने तुम्हारे पुरखे इब्राहिम को चुना, उसे आशीष दी, उसे उस देश में लेके गया जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जिसने उसकी अंश को, उसकी मिरास को मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया, लाल समुद्र को फाड़ा, जिसने मिस्र के फिर घोड़ों और रथों को महासमुद्र में डुबो दिया, और मिस्र के महान चक्रवर्ती राजा अमीनोटॉप द सेकंड जो था, उसके गुरूर को तोड़ा समुद्र के बीच में, जिसने मिस्र के देवी देवताओं का न्याय किया, 42 देवी देवता, उनके ऊपर जजमेंट भेज के उन्हें कुचला, जो बियाबान में उन्हें लिए चला 40 वर्ष, जो बादल का साया बन के उनके ऊपर उतरा, आग का खंबा बन के उनके ऊपर उतरा, जिसने अबदी चट्टान में से उनको पानी पिलाया, जिसने बियाबान में उनकी देखभाल की, प्रतिपाल की, उनके शत्रुओं को, जो नफलीम थे, जो दानव थे, बड़े बड़े दानव थे, जिनके अंदर शैतानी बीज था, जिनके अंदर बदरूहों का डीएनए था, जो सटैनिक ब्लड लाइन थे, उन बड़े बड़े दानवों का संहार यहोवा ने किया। वो शत्रु इनके ऊपर एम्बुश करके आते थे, यहोवा उन्हें हराता था। 40 वर्ष वो हठीले थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, यहोवा के खिलाफ बलवा करते थे, विद्रोह करते थे, यहोवा के बड़े बड़े उपकार, महान कामों को भूल जाते थे, फिर कुड़कुड़ाते थे, फिर बुड़बुड़ाते थे। धर्मी, पवित्र, करुणामयी यहोवा अपने दास मूसा की प्रार्थना को सुन के बार बार उन्हें क्षमा करता था। 7 विद्रोह किए इसराइलियों ने बियाबान में, 7 विद्रोहों को यहोवा परमेश्वर ने क्षमा किया। और मूसा कहता था, परमेश्वर लोग क्या कहेंगे? हम भी कहते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लेकिन मूसा क्या कहता था? मूसा कहता था, परमेश्वर, व्हाट विल द हीदन से? वुड दे नॉट से, wasn't their God Yahweh was too weak and powerless that he delivered them from the land of bondage? Was he not able to take them through and give them the land that he promised their father that they will inherit as perpetual inheritance? Moses would pray, intercede in a very clever way. यहोवा फिर मूसा की प्रार्थना सुनता था, इन्हें क्षमा कर देता था। हालेलुया। आपको मालूम, ये 1 साल से पहले कनान में पहुंच जाते। कदेश बर्निया आखिरी सिटी है, उसके बाद प्रॉमिस लैंड शुरू हो जाती है। तो इन लोगों ने क्या कहा? हम पहले जासूस भेजेंगे। प्रभु का आइडिया नहीं था जासूस भेजना, प्रभु कहता था गो एंड पोजेस द लैंड। तो इन्होंने मूसा से आके कहा, व्यवस्था सार पहला अध्याय पढ़िएगा, उसके 25 वचन से आगे पढ़िए, वहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। मूसा कहता, तुमने मुझे ये विचार दिया, ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा, ये यहोवा का आइडिया नहीं था। हालेलुया। वो गए और उन्होंने दानवों को देखा, बड़े बड़े नफलीमों को, और 10 लोग एक नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए कि वहाँ दानव हैं, वो हम तो ग्रास हॉपर हैं, टिड्डे हैं, जो भी आ रहे हैं ना ग्रास हॉपर, हम इनकी तरह हैं, टिड्डे हैं हम तो। यहोवा को क्रोध आया, उसने कहा, मैं 1 दिन को 1 साल में बदलूंगा। अब 40 दिन की यात्रा को उसने 40 साल में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने यहोवा को ग्लोरीफाई नहीं किया। उन्होंने दानवों को देखा, यहोवा को नहीं देखा। भाई और बहनों, अपनी आंख यहोवा पे लगाइए। हालात मत देखिए कैसे हैं कोरोना में, कि लॉकडाउन है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, इकॉनमी शटर हो रही है। अगर आप प्रभु के संग सही चलेंगे, प्रभु आपको बचा कर रखेगा। आपका जीवन प्रभु में डूबा होना चाहिए। जैसे आटे को गूंदा जाता है, ऐसे अपना जीवन गूंद लीजिए पवित्र आत्मा में। अब पाप का समय नहीं है, गुप्त पाप, हरामकारी, गंदे पाप त्याग दीजिए। हालेलुया। तो प्रभु उनको छुड़ा के ले गया। हालेलुया। नई पीढ़ी को लेकर गया। 40 साल उसने इसलिए घुमाया क्योंकि पुरानी पीढ़ी को नहीं लेके जाना चाहता था वो। 40 साल में जो उनके बच्चे पैदा हुए बियाबान में, जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, उस बड़ी जनरेशन को कनान में लेकर गया यहोवा। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? ये कहता है कि आमोस तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कौन? ये करप्ट याजक है, शाही खजाने से तनख्वाह लेते हैं, पैसा लेते हैं, राजा को खुश करते हैं। दुष्ट राजा है, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसके लिए बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, मनी के लिए, पॉलिटिकल फेवर के लिए, पॉलिटिकल
पावर के लिए, कुर्सी के लिए ये काम कर रहा है याजक। तो कहता तेरे वचनों को सह नहीं सकता देश, ये वचन यहोवा के हैं जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया, ये उसका कलाम है। क्योंकि आमोस यूँ कहता है, यरोबोआम तलवार से मारा जाएगा और इस्राएल अपनी भूमि पर निश्चय बंधुआई में जाएगा। ये सच्चा कलाम दे रहा था वो, कि यरोबोआम राजा मारा जाएगा और पूरा इस्राएल असीरियन लोगों की गुलामी में चला जाएगा। ये नबी पैगाम दे रहा था। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, तब अमस्या ने आमोस से कहा, सुनो अब अमस्या क्या कहता आमोस से, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर। ये साउथ से आया है, सदर्न किंगडम से, नॉर्थ में भविष्यवाणी कर रहा है। और ये कहते हैं हमारे पास बैतल है, हमें यरूशलेम की हैकल नहीं चाहिए। यरूशलेम की हैकल में यहोवा परमेश्वर यहाँ पे विराजमान था, यहाँ पे, क्योंकि ये उनके पास था जिसके ऊपर यहोवा की हजूरी लहू पे साया करती थी। इसलिए यहूदा का पतन लगभग 125 साल के बाद हुआ। और यहूदा का इतिहास पढ़ेंगे, यहूदा में कई धर्मी राजा हुए। नॉर्दर्न किंगडम में मोस्टली राजा दुष्ट थे, शैतानी थे। नॉर्दर्न किंगडम में बड़े नबी, जबरदस्त नबी खुदा के गए, पर वो लोग पलटे नहीं। तो क्या कहता है, यहां से निकल जा, चला जा यहां से दर्शी, निकलकर यहूदा देश में भाग जा, वहीं रोटी खा, वहीं भविष्यवाणी कर, परंतु बैतल में फिर कभी भविष्यवाणी ना करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। किसका पवित्र स्थान है मेरे भाई? उस राजा का, यरोबोआम का, दुष्ट राजा का, जो बछड़ों की पूजा करा रहा है। ये इतना पॉलिटिकली इंटॉक्सिकेटेड हैं, राजनेताओं की इतनी शराब पी है इन याजकों ने और झूठे नबियों ने, इतना पैसा खाया है। क्या कह रहे हैं कि ये राजा का पवित्र स्थान है बैतल, यहोवा का नहीं है, क्योंकि ये बालीमों की, शैतानी आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, और राजनगर है। देखते हैं आप याजक कितने भ्रष्ट हो सकते हैं, जिनका काम है यहोवा की व्यवस्था सिखाना। मैंने आपको कल बताया था कि लाइंग पेन ऑफ द स्क्राइब्स, जो कलाम लिख रहे हैं उनके पेन झूठे हैं, और याजक जो हैं वो छिनाला कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, और नबी झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं पैसा लेके। इज़राइल का पतन इसलिए हुआ। उससे कहते हैं यहाँ से निकल जा, भाग जा, जा अपने साउथ में जाके भविष्यवाणी कर। अब देखिए आमोस क्या कहता है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा था। आपको मालूम, ध्यान से वचन पढ़िएगा, जितने यहोवा के सच्चे नबी हुए उन्होंने कभी कामना नहीं की थी नबी बनने की, कभी नहीं चाहा कि हम नबी बने। उनको जबरदस्ती यहोवा ने नबी बनाया। जितने सच्चे हैं और जितने झूठे हैं वो एंटाइटलमेंट चाहते थे। वो अपने नाम के आगे प्रॉफिट फलाना ढिमका, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, ये वो खुद लगाते थे। और जो सच्चे थे वो कहते थे, प्रभु हम नहीं इस लायक, मुझे छोड़ दे, किसी और नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो भेड़ें चराने वाला हूं। उनको प्रभु चुनता था। जो सच्चे हैं वो कभी पदवी की, अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी पदवियां, बिशप, आर्च बिशप, हिज होलीनेस, फलाना ढिमका, पोप, फादर, कुछ नहीं लगाते थे वो, पापा डैडी। वो तो भेड़ बकरी चलाने वाले साधारण लोग थे। राजा दाऊद भेड़ बकरी चराने वाला साधारण जवान लड़का था। मूसा मिद्यान का चरवाहा था। वो कहता मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, मैं तो थथलाता हूं। जो प्रभु के सच्चे खादम थे वो प्रोफेशनल नहीं थे। समझ रहे आप मेरी बात? वो प्रोफेशनल नबी नहीं थे, उनको कुछ भी नहीं मालूम था, और उनको यहोवा चुनता था। और वो कभी किसी से कहते भी नहीं थे मैं प्रॉफिट हूं। कौन से सच्चे नबी ने कहा मैं प्रॉफिट हूं? देखिए आमोस क्या कहता है। कहता ना मैं ना तो भविष्यवक्ता था भाई, ना भविष्यवक्ता का बेटा था, मेरी कोई लिनेज नहीं है। लोग कहते हैं ना, एक अफ्रीका में बहुत चलता है, हमारी ब्लड लाइन फलाने पापा की है, फलाना पापा मेजर प्रॉफिट पापा उसकी ब्लड लाइन से हुए, फलाना मेजर प्रॉफिट माइनर प्रॉफिट पापा उसकी। अरे भैया, व्हाट इज ह्यूमन डीएनए? ह्यूमन डीएनए इज करप्ट, ह्यूमन डीएनए इज फुल ऑफ सिन, ह्यूमन डीएनए इज फुल ऑफ रेप्रोबेशन, फॉलन ह्यूमन डीएनए। उसके ऊपर क्या गुरूर कर रहे हो? यहोवा के डीएनए पे गुरूर करो।
जो मरियम की कोख में उतरा, हम उसके डीएनए से जाने जाते हैं और हमारा पापा हेवन में है। हालेलुया। और वो आपको बेटा कहता है, वो कहता है ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। क्यों ह्यूमन लिनेज ढूंढ रहे हो आप? ह्यूमन डायनेस्टी अफ्रीका में बहुत चलती है। मैं मेजर प्रॉफिट का बेटा हूँ, मैं फलाने माइनर प्रॉफिट का बेटा हूँ, मेरे अंदर उसकी अनॉइंटिंग है, मैंने उसका मेंटल ले लिया, मैंने उस, अरे क्या लेना मनुष्यों का मेंटल लेके। अमेरिका में पता क्या हुआ? एपोस्टोलिक रेफर्मेशन में लोग जाके कैथरीन कुलमन की कब्र के ऊपर लेटते थे, ग्रेव सकिंग। बड़े बड़े संतों की कब्रों पे लेटते थे, विलाप करते थे कि इनकी अभिषेक हमारे अंदर आ जाए। अरे भैया, ये निक्रोमेंसी है, ये मुर्दों की पूजा करना और मुर्दों की उपासना करना। बड़े बड़े सेवक हैं कैलिफोर्निया में, बड़े बड़े प्रीचर जो ये काम कर रहे थे, बड़े बड़े नबी अपने आप को पथ भ्रष्ट कर रहे थे लोगों को। बड़ा नाम देख के, बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस देख के मत जाना, धोखा खा के नरक में चले जाओगे। कलाम के संग जुड़ो, सच्चे कलाम के साथ। नबी कहता है भैया, मैं ना तो मेरी कोई हेरिटेज था, ना मैं नबी था, ना ही मेरा बाप नबी था। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों को छाटने वाला था, छोटा सा बंदा था मैं। ये होते सच्चे नबी। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से बुलाकर कहा, मुझे कहा, मैं भेड़ बकरियों के पीछे फिर रहा था, मुझे बुलाकर कहा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। किसका काम है ये जो मैं बोल रहा हूं भैया? ये यहोवा का कलाम है। उससे पूछो वो क्यों मुझसे बुलवा रहा है। सच्चा कलाम। तो इसलिए क्या कहता है? इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी। याजक को कह रहा है, अमस्या को, कि तेरी औरत दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करेगी, वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी, और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर निश्चय बंधुआई में जाएगा। ये भविष्यवाणी पूरी हुई खुदा के बंदे की। उसकी बीवी वेश्या बन गई, उसके बेटे बेटियां मार दिए गए, और उसको अशूर का राजा गुलाम बनाकर ले गया। समझ रहे हैं आप? यहोवा के सच्चे नबियों का मुंह बंद करना चाहते हैं झूठे लोग, करप्ट लोग, पाप में डूबे हुए लोग, बदकारी, हरामकारी, गंदे कामों में डूबे हुए लोग। यहोवा की सच्ची आवाज़ से घृणा आती है उन्हें। यहोवा के सच्चे खादिम नहीं डरते, क्योंकि उनको मालूम है यहोवा उनके अंग संग है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या प्रभु यहोवा कहता है उसको? सुनो यहाँ पे, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से। मैं कुछ और बात आज आपसे करना चाह रहा था, पर परमेश्वर का कलाम कहीं और लेके जा रहा है। हालेलुया। सुनिए, 8 अध्याय में आइए। ने मुझे यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या दिख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से एक भरी टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और ना छोड़ूंगा। आपको मालूम, हिब्रू भाषा में बहुत वर्ड प्ले है। वर्ड प्ले जिसे पंज बोलते हैं। यीशु मसीह की भाषा में बहुत सैरकैज़म है, जिसे हम सरकास्टिक लैंग्वेज बोलते हैं। सैरकैज़म, वर्ड प्ले है, पंज हैं। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तब आपको पता लगेगा। आपको मालूम, हिब्रू ऐसी भाषा है जिसे विज्ञान आज तक ढूंढ नहीं सका ये कहाँ से शुरू हुई, किसने इसे इन्वेंट किया। आर्कियोलॉजी नहीं ढूंढ सकी इसे, इटिमोलॉजिकल साइंस नहीं ढूंढ सकी कि कहाँ से शुरू हुई। क्योंकि ये भाषा, आपको मालूम, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया, वो कौन सी भाषा बोलता था? उसने जानवरों को नाम दिए। कैसे दिए? क्योंकि यहोवा परमेश्वर की क्लास में, शक्ल और छवि में आदम बना था। उसने, यहोवा परमेश्वर ने अपने माइंड में सभी जानवरों को नाम दे रखे थे। वो यहोवा परमेश्वर के माइंड को परसीव किया और वो हिब्रू भाषा बोलता था।
इब्रानी भाषा का पृथ्वी पे कोई भी ओरिजिन नहीं है, ये स्वर्गीय भाषा है। इसे हमारे पिता, स्वर्गीय पिता यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आपको मालूम, हिब्रू लैंग्वेज 10 से ज़्यादा डिमेंशन में डिकोड होती है, एक डिमेंशनल नहीं है ये, इट्स मल्टी डिमेंशनल लैंग्वेज। तो समर के विषय में, इज़राइल में जब समर आती है तो फसल आती है, और समर की फसल ऐसी होती है फलों की, अगर आपने सही समय पे फल नहीं तोड़े, फसल नहीं उठाई, तो वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पे हिब्रू वर्ड प्ले क्या है? समर को हिब्रू भाषा में बोलते हैं कीट्स, KIETZ, कीट्स। और जो एंड है, अंत है, अंत को बोलते KETZ। सिर्फ एक नुक्ते की कमी है वहाँ पे हिब्रू में, नुक्ते की कमी। तो परमेश्वर नुक्ते के ऊपर खेल रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तू क्या देखता है? वो कहता है धूप काल के फलों की एक भरी टोकरी, धूप काल के फलों की भरी टोकरी है। समर के लिए जो शब्द है, समर की हार्वेस्ट के लिए शब्द है, वो है कीट्स। वो कहता है मुझे कीट्स दिख रहा है, लेकिन प्रभु उसे कहता है केट्स है, केट्स, एंड है, ये अंत आ गया है, क्योंकि ये फल सड़ गए हैं। हालेलुया। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा का अंत आ गया। हिब्रू वर्ड प्ले है, मैं अब उसको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और शबों का ढेर लगेगा और सब स्थानों के लिए चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। फिर वर्ड प्ले है। परमेश्वर बता रहा है जैसे गले सेब या गले हुए आम, गले सड़े फल जो होते हैं उसको ढेर पे फेंक दिया जाता है। जो कटनी है, हार्वेस्ट है, वो रूहों की है। प्रभु कहता है ये सब उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। राज मंदिर किसे कह रहा है? परमेश्वर कटाक्ष कर रहा है। इनके पास टेम्पल नहीं है, लेकिन जो राजा ने बछड़ा खड़ा किया है उसको ये क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं, घर परमेश्वर का। और राजा के महल को राज मंदिर कहते हैं। नॉर्दर्न किंगडम की प्रॉब्लम ये थी कि राजाओं को डीफाई कर रहे थे, ये राजाओं को भी देवता बना रहे थे, उनको बहुत मान सम्मान देते थे, क्योंकि यहोवा का मान सम्मान नहीं था नॉर्दर्न किंगडम में। तो लिखा है सब चुपचाप फेंक दिए जाएंगे गले सड़े फलों की नाई। ये सुनो, तुम जो दरिंदों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो कब नया चांद कब बीतेगा, हम अन्न बेच सकें। क्या कहता प्रभु? कहता तुम इतने भ्रष्ट हो, तुम कहते हो ये फेस्टिवल ख़त्म हो जाए, नए चांद का, न्यू मून का, ये फेस्टिवल ख़त्म हो, हम जाके अपनी दुकानें खोलें, कारोबार करें। विश्राम दिन कब बीतेगा, हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकल को भारी कर दें और छल से डंडी मारें। बता रहा नबी, कहता तुम यहोवा के अपने जो मंदिर बनाए हैं वहाँ पे जाके पर्व तो मनाते हो, लेकिन दिल में ये सोचते हो ये पर्व कब ख़त्म हो, हम अपनी दुकानें खोलें, कारोबार करें। सबत कब ख़त्म हो कि हम जाकर क्या करें? एपा को छोटा, वो जो नापने वाले पैमाने हैं उनमें हेरा फेरी करें। जब चीज़ें बेचते हैं, और डंडी मारें लिखा है, छल से डंडी मारें, तराजू से गलत तोलें। और जिस पैमानों में नापते हैं तेल, जिस पैमानों में दूसरी चीज़ें नापते हैं, उनको छोटा कर दें ताकि लोगों को ठगें। हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूती देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। गरीबों को, दुखियों को, अनाथों को, विधवाओं को उनका शोषण करें, उन्हें लूटें, उन्हें ठगें। ये काम कर रहे हैं ये। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारे किसी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी? समझते भूमि कब कांपती है? जिसे अर्थक्वेक बोलते हैं। सिज्मिक एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं? जब परमेश्वर की प्रजा पाप करती है। परमेश्वर को जो पापी कौमें हैं उनके पाप से लेना देना नहीं है कुछ ज़्यादा, उनका तो वो न्याय करेगा। परमेश्वर को अपनी प्रजा से लेना देना है। हालेलुया। कहता है क्या उन सब पर सब रहने वालों विलाप ना करेंगे? ये देश का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती है और फिर घट जाती है। परमेश्वर यहोवा
की ये वाणी है, उस दिन मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूँगा और देश को दिन दोपहरी में अंधियारा कर दूँगा। ये जो भविष्यवाणी है इसराइल की असीरी के बाद पूरी हुई है। आप इसे चेक कर सकते हैं, नासा की वेबसाइट पे ऐसा इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं कब कब जो हैं इक्लिप्स लगे, ग्रहण कब कब लगे, कौन कौन सा ग्रहण कब कब लगा, इसको आप चेक कर सकते हैं नासा की वेबसाइट पे जाकर। आपको हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिल सकते हैं उसके। हालेलुया। तो मैं अभी आपको इसका एक रेफरेंस देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर, और मैं बताता हूँ इसका रिकॉर्ड आपको। सच एन इक्लिप्स सीम्स टू हैव बीन रिकॉर्डेड एट 631 BC। 631 BC में ये इज़राइल की डिपोर्टेशन के बाद हुआ। लेकिन ये जो प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी नबियों की जो नबूवतें हैं वो अपने समय के लिए उसकी फुलफिलमेंट और फ्यूचर में उनकी फुलफिलमेंट। मत्ती 27 का 45 पढ़ें, व्हेन जीसस वाज हंग ऑन द क्रॉस। ये जो सेलेशियल बॉडीज़ थी इन्होंने रोशनी देनी बंद कर दी। सूर्य के ग्रहण लगने का सवाल नहीं पैदा होता उस दिन साइंटिफिकली, क्योंकि फुल मून था। व्हेन देयर इज़ फुल मून देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ सोलर इक्लिप्स। That darkness that came for 3 hours was divine darkness. The judgment of the whole world fell upon Jesus. यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का दंड पड़ गया। हालेलुया। आपको मालूम क्रूस पे लटका यीशु मसीह शराबी बना? मालूम आपको मालूम जब इस्राएली लोगों ने पाप किया यहोवा के विरुद्ध में और आग के सांप आए, सराफ लिखा वहाँ पे, ईश सराफ, आग के सराफ आए, लोगों को डसने लगे, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक सराफ बनाना, सराफ, और वो पीतल का हो, ब्रॉन्ज का, जो जजमेंट को दिखाता है, उसको ऊपर करना। जो कोई उसको देखेगा वो सांप के जहर से बच जाएगा। परमेश्वर ने उसको बोला सराफ बनाना, लेकिन हिब्रू में लिखा है मोजेस मेड अ नखाश। नखाश वो है जो अदन के बाग में गया हवा को भरमाने। सराफ वो हैं जो सराफीमों में से वर्ड निकला है, बहुत ही शाइनी ब्राइट वंस। जो सराफीम यहोवा की स्तुति करते हैं, 2 पंखों से अपने मुंह को ढांकते हैं, 2 से पाँव को, 2 से उड़ते हैं और सिर्फ ये कहते हैं खुदिश खुदूश 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 यहुआ सबायो, 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 खुदूश 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 यहुआ सबायो। वो पता नहीं कितने युगों से यही कहते आ रहे हैं, लेकिन मोसेस ने नखाश बनाया। आपको मालूम सांप काट रहे थे और सांप ही बना के लगा दिया गया। वो सांपों का काटना श्राप है, उसी श्रापी चीज़ को ऊंचा कर दिया गया। यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 6:40 में? यीशु मसीह ने कहा जैसे मूसा ने बियाबान में सांप ऊंचा किया, वैसे इब्ने आदम को ऊंचा किया जाएगा। यीशु मसीह को किससे तोला गया? सांप से, सरपेंट से, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को ऊंचा किया गया। वो सांप जजमेंट है। हालेलुया, पाप की जजमेंट है। यीशु मसीह के ऊपर जजमेंट गिरी। आपको मालूम यीशु मसीह को जज किसने किया? जजमेंट किसने डाली यीशु मसीह के ऊपर? शैतान की जरूरत नहीं है यीशु मसीह पे जजमेंट डाले। यीशु मसीह के ऊपर यहोवा ने जजमेंट डाली। वो सृष्टि का स्वामी और ब्रह्मांड का न्यायी है। आपकी और मेरी जजमेंट यीशु मसीह ने उठा ली है। हालेलुया। अगर अब आप प्रभु में चलो आत्मा में, रोमियो 8:14, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। परंतु रोमियो 8:14 में लिखा है जितने रोज रोज पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने रोज रोज अपने आप को क्रूस पे चढ़ाते हैं, जितने रोज रोज अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा देते हैं, जितने रोज रोज अपने आप का इनकार करते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, जितने रोज रोज पवित्र आत्मा के फल पैदा करते हैं, जितने रोज रोज मसीह में बने रहते हैं, जितने रोज रोज संसार पे, पाप पे, शैतान पे, अपने शरीर पे जयवंत जीवन जीते हैं, जो फल लाते हैं, जो जय पाते, जयवंत जीवन जीते हैं,
और जो वफादार रहते हैं प्रभु के, 3, जो जय पाए, जो फल लाए और जो वफादार रहे, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज आपसे बात करनी थी, कल जो मैं बात कर रहा था ट्रिबुलेशन की, कि कलीसिया सताव में नहीं जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी शिक्षाएं आ रही जो लोगों को गुमराह कर रही हैं। देखिए, हम यीशु मसीह की देह हैं, यीशु मसीह हमारा सर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि देह 7 साल के सताव में चली जाए, दुख भोगे 7 साल के लिए, और सर स्वर्ग में बैठा रहे? इज इट पॉसिबल? प्रभु को 7 साल के सताव में भेज के पूरी दुनिया को के संग कलीसिया को कौन से अनुग्रह का पैगाम देना है? ये कौन सा अनुग्रह हुआ? वचन में लिखा है, क्या लिखा है? गॉड हैजंट अपॉइंटेड अस अनटू रॉथ। मैंने कल सुबह आज आपको बड़े डिटेल में बताया, लेकिन एक बार फिर मैं, अगर प्रभु चाहेगा कल या परसों उसके ऊपर और थोड़ा मनन करेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। अभी मैं चाहता हूँ हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं कुछ और भी आपको बताना चाहता था हिस्ट्री के विषय में इसकी, लेकिन मैं समझता हूँ अभी मेरे पास समय, अभी हम प्रार्थना करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सी बातें थी, बट लेट्स प्रे, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी शरण में आते हैं, सब प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह, हम आपके लहू के साए के नीचे आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप महाप्रतापी हो। प्रभु जी, आप सृष्टि के रचिता हो, आप हमारे तारणहार हो। प्रभु जी, आप हमारे स्वामी हो। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु जी, हमें प्रभु अपनी आत्मा में अपनी आत्मा की आग से भरा जीवन दें। प्रभु जी, जो फ्लेम हमारे अंदर है पवित्र आत्मा की, हम उसे फ्लेम को फैन करते हैं, हवा देते हैं पवित्र आत्मा की। वी फैन द फ्लेम दैट इज़ विद इन अस लॉर्ड गॉड। खुदावंद, हमारी कुप्पियों में नया तेल, प्रभु जी, वो गाढ़ा तेल जो यीशु मसीह के कुचलने से निकला, शिमिन जो है प्रभु, वो गाढ़ा तेल हमारी कुप्पियों में भरिए। प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन को खोलिए। प्रभु जी, अपने वचन की रोशनी हमारे हृदय में प्रभु जी जलाइए, और हमारे कदमों में प्रभु जी आपके वचन की रोशनी गिरे और हमारे राह रोशन हो। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपकी पवित्रताई, आपकी धार्मिकता, प्रभु जी आपके सच्चे कलाम के पीछे हम चलें। भरमाने वाला, लोगों को ठगने वाला, प्रभु जी झूठी आशा देने वाला, झूठी प्रॉस्पेरिटी देने वाला, प्रभु जी झूठी नबूवतों वाला, झूठा कलाम जो लोगों को नरक की ओर लेके जा रहा है, प्रभु जी उसे हम यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं। आपके सच्चे इख्तियार को, सच्चे पैगाम को हम खोलते हैं। प्रभु, लोगों का जीवन आपके सच्चे और जिंदा कलाम की कुदरत के द्वारा बदला जाए। प्रभु, एक एक भाई बहन जो ऑनलाइन है, इनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के काम हो। मैं आपका लहू इनके ऊपर छिड़कता हूँ। प्रभु, जो जो प्रार्थना की विनतियाँ भेजी गई, वो सब प्रार्थना की विनतियों को आपके हजूर में उठाते हैं, आपका लहू छिड़कते हैं। एक एक जन पे आपकी आशीष हो। प्रभु, इन अंतिम दिनों में आपके लोग सजग रहें, प्रार्थना करें, पवित्र जीवन आपके लिए जिएं। प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह, आपके पवित्र और जलाली नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कल 10 o'clock फिर मिलेंगे। प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, पवित्र जीवन यीशु मसीह के लिए जिए। यीशु मसीह की ज्योति चमकाइए अपने जीवन से, उसकी लाइट निकले आपकी लाइफ से। बहुत सारी रूहें यीशु मसीह के लिए जीती है। प्रभु, आपको, आपके घराने को, आपके लव्ड वन को, जो आपके घराने के लोग अभी तक प्रभु के चरणों में नहीं आए, प्रभु उनको अपने राज्य में खींचे। प्रभु आपको बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।